Assalamu alaikum everyone. Can you all hear me? Aman, Huria, Irene, Ryan, Simran, can you hear me? Yes, sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Why there are so less number of students? बाकी students कहाँ हैं? Only 6 students are present. Okay, what we were discussing in the last class, I believe we have completed the prefix. Have we started the topic of vectors and scalars? Yes, we started the topic of vectors and scalars. We have started vectors and scalar. We have started editing vectors and scalars, I believe. Yes, sir. And I believe we were discussing the addition of two vectors by changing the angle between them, right? Okay, we were discussing about the addition of vectors. And what we were discussing that if we change the angle between the vectors, the angle actually represents the direction. If we change the direction of the two vectors or any one vector, the change in direction causes the effect on the magnitude. Magnitude पे direction को change करने की वजह से उस पे effect आता है. We discussed that if we have two vectors, they are in same direction. They are same direction, which means they are parallel. If they are parallel, we say the angle theta between them is 0. And this theta is actually representing the direction, which means they are in same direction. So if we have a vector of 3 newtons and a 5 newtons, and force is a vector. So in this case, the resultant will be 8 Newton, and that resultant is actually the maximum you can get. इससे ज़्यादा आपको resultant नहीं मिल सकता इन दोनों vectors का, ठीक है? Then later we also discussed that if we have two vectors in opposite direction, okay? If they are opposite, we say that they are anti-parallel. And the theta for such vectors is actually 180 degree. Again, the theta is representing direction, which means they are in opposite direction. And this is actually the 180 degree angle. If we have a vector of 5 Newton and 3 Newton, in this case, we'll get the answer of 2 Newtons. Okay, and that's the minimum answer or minimum magnitude you can get. Okay. Then after that, we discussed that if the two vectors are at right angle to each other, they are actually 90 degree to each other. The one vector is 3 Newtons, the other is 5 Newton vectors. Okay. Or we can have this situation like another way कि अगर हमारे पास ये वेक्टर दोनों में 5 न्यूटन ऊपर चला जाए और 3 न्यूटन नीचे आ जाए, तो दोनों केसेस के अंदर we found that the resultant will be same. In both cases, the resultant is, I guess, 5.83 newtons. I guess ये resultant हमारे पास आया था.
जी यही आया था रिजल्टेंट। जी बच्चों, यस सर, यही था। ठीक है। तो दिस वाज द रिजल्टेंट, और इसमें हमारे पास ये बताइए व्हाट वाज द एंगल। इट वाज लेस देन 45 degrees, I believe the angle was 31 degrees, है ना? Yes, sir. Okay, and then we discussed that if we add the two vectors in this way, the resultant will be same, that is 5.83 newtons, but the angle this time will be greater than 45, and that's approximately, I believe, 58 degrees. जी, या 53 डिग्री था। सर, इट वाज 59। Okay, 59 degrees. Okay, thank you. 59 degrees is the angle. तो इस केस में हमारे पास एंगल 59 degrees आ रहा था। Since the magnitude of the two vectors are same, it will not change the resultant magnitude, but the angle will be different. यहाँ पे इससे क्यों 45 से less क्यों था? Because horizontal vector is larger, और यहाँ पे वर्टिकल 45 से बड़ा क्यों है? क्योंकि हम वर्टिकल की तरफ ज्यादा क्यों है? बिकॉज वर्टिकल वेक्टर इज लार्जर। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, इसको किसी ने कॉपी करना चाहता है तो कर ले, अदरवाइज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस नाउ। जी, जिन्होंने कॉपी करना है कर लिया कॉपी। जी बच्चों, हो गया कॉपी? यस सर। Okay, so let's discuss now if we put two vectors at different directions now. Let's say the two vectors are acting on an object something like this. These two vectors are same, 3 and 5 Newton, but this time they are acting at an angle. Let's say this theta is 40 degrees. Okay, this is actually angle smaller than 90 degrees, so we call it acute angle. Okay, acute angle में the direction of the, or we can say the two vectors are pointing in the same position actually, but there is a slight angle between them. छोटा सा उनके दरमियान में एंगल जरूर होता है। acute angle हम कितना ले रहे हैं? 40 degrees का acute angle ले रहे हैं। Now if we add these two vectors together, this is actually done by addition, is done by head to tail rule. Obviously we remember हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हेड टू टेल रूल से करते थे। हेड टू टेल रूल एक दफा फिर रिपीट करता हूँ। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी एक वेक्टर को पहले उसकी गिवन डायरेक्शन में बना लीजिए, ओके, एंड देन आप दूसरे वेक्टर को भी उसकी गिवन डायरेक्शन में बनाइए, लेकिन ऐसे बनाइए कि उसकी टेल पहले वाले के हेड से जुड़ जाए। तो हम इसी चीज को फॉलो करते हुए सबसे पहले लेट्स से आई एम ड्राइंग ए की ये डायरेक्शन है, ठीक है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल वेक्टर ऑफ 5 न्यूटन्स, ठीक है, ये इसका हेड है। अब द सेकंड वेक्टर इज बी, एंड नाउ विल मेक बी इन सच अ डायरेक्शन दैट द टेल ऑफ द बी विल जॉइन विद द हेड ऑफ द ए के हेड से जॉइन हो जाए।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वेक्टर बी है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल से, if this is a horizontal line, this blue one is a horizontal line, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल के ऊपर है जी? 40 डिग्री के ऊपर। तो लेट्स से दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वही हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड नाउ विल मेक बी like over here something like this, okay, and this angle between the horizontal line and B, which is actually 3 newtons, should be 40 degrees. तो ये दोनों वेक्टर्स का हेड टू टेल हो गया, ठीक है। अब the resultant can be found by joining the head of the by joining the tail of the first to the head of the second vector. रिजल्टेंट के लिए हम पहले वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड से जोड़ देंगे और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन हमेशा हेड ऑफ सेकंड वेक्टर की तरफ होती है, ठीक है, यानी सेकंड वेक्टर हमने बी बनाया है तो उसकी तरफ होगी। नाउ दिस गिव्स यू अ ट्रायंगल अगेन, दिस इज अ ट्रायंगल, बट दिस ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अच्छा, ट्रायंगल की हमें दो साइड्स पता है और हमें तीसरी साइड, लेट्स से दिस इज आर, और ये आर साइड निकालनी है, ठीक है। और हमें ये पता है कि इस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा इंटरनल एंगल जी? व्हाट विल बी दिस एंगल? 140। 140 डिग्री, क्योंकि बाहर अगर 40 है तो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल 140 हो जाएगा। और आपको ट्रायंगल का एक एंगल पता है, दो साइड्स पता है, विच रूल यू विल यूज टू फाइंड आउट द थर्ड साइड जी? कोसाइन। कोसाइन रूल, बिल्कुल सही है, कोसाइन रूल वी विल यूज। कोसाइन रूल हमें ये कहता है कि r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है जी। और हम इस सब का रूट लेंगे। बाय द वे दिस थीटा इज नॉट द आउटर एंगल, इट इज द इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है, अंदर वाला एंगल 140 है, यानी हम 140 डिग्री वाला एंगल लेंगे। सो दिस मेक्स r इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5 3 कोसाइन 140, और इस सब का रूट हो जाएगा, ठीक है जी। रिजल्टेंट की वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है? जी, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 7.54। 7.54। ऑब्वियसली आप पहले cos 140 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको 34 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कभी भी 34 में से 30 माइनस करके फिर उसका 4 cos नहीं ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऑब्वियसली द आंसर इज 7 point what? 54। 54, 7.5 approximately Newton is your answer, okay. So this is how you will find out the resultant magnitude, ठीक है, जब आपके पास दो वेक्टर्स एक्यूट एंगल के ऊपर होते हैं। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, लेट्स सी, वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के ऊपर भी अभी बात करते हैं, पहले आप लोग इसको यहाँ तक कॉपी कर लें। एंड इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन वो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? सर आपने बताया था कि जी रायन बोले। सर आपने बताया था कि मिनिमम जाता है हमारे पास 2 न्यूटन तक एडिशन ऑफ वेक्टर में,
और फिर और मैक्सिमम जाते हैं 12 न्यूटन तक, 12 न्यूटन से आगे तक जा सकते हैं। 12 न्यूटन हमारे पास इन दो वेक्टर्स के लिए तो नहीं जा सकता। हमारे पास इन दो हाँ, वेक्टर्स के लिए तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8 8। जब वो कैसे होंगे? जब वो पैरेलल हो, सेम बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, साइड, हाँ। सेम डायरेक्शन और में। मिनिमम कब जाएगा जब वो दोनों कैसे होंगे? अपोजिट 180। ठीक है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका मैक्सिमम क्या हो सकता है 5 और मिनिमम? 1। बिल्कुल सही। और हमें 5 और 1 के दरमियान की सारी वैल्यूज भी मिल सकती हैं। जी ठीक है, सही जैसे है। हमने 8 और हमने कहा मैक्सिमम है और 2 मिनिमम है, और उसके दरमियान की वैल्यूज देखो हमें मिल रही हैं। पहले कितनी मिली थी 90 डिग्री पे रख के? 5.83 है ना। उसके जी बाद हमने जब इनको 40 डिग्री पे रखा तो कितनी वैल्यू मिल रही है? 7.5। ठीक है, सही, यानी समझ 8 गया। से कम। ठीक है। जी सही। जी बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन? अमन, दुर्दाना, हुरिया, आयरीन, No, sir. मशल, मशज, इशहाज, सॉरी, No, sir. मुजना, No, sir. शामीर, सिमरन, जी बच्चों, कॉपी हो गया? जी कॉपी हो गया बच्चों? जी सर, हो गया। So we found the resultant, that is R is equals to 7.5 newtons over here in this case. Now let's talk about the direction. हम इनकी डायरेक्शन को कैसे ऑब्टेन करेंगे? ठीक है, एडिशन तो हेड टू टेल रूल लगा के हमने कोसाइन रूल लगा दिया, एंड अगेन दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मेथड। इसको हम ट्रायंगुलर मेथड का नाम भी देते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें ट्रायंगल बनता है हमेशा। ठीक है, ओके। नाउ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेट्स सी दिस डॉटेड लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमें ये एंगल निकालना। ओके, लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा एंड लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। तो हमें, और ये ऑब्वियसली हमने थीटा कहा हुआ है इसको। ठीक है, तो अल्फा हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट अल्फा विच इज द एंगल ऑफ आर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। बीटा हमें नहीं निकालना। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि एक ट्राइंगल में टोटल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर अल्फा हम निकाल लें तो हमें बीटा वैसे भी मिल सकता है क्योंकि थीटा की वैल्यू 140 हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट अल्फा, जिसके लिए अब हम रूल लगाएंगे, वी विल यूज साइन रूल। ठीक है,
साइन रूल आप आमने सामने की साइड्स लेते हैं, जैसे कि आपके पास बी के सामने वाला एंगल जो है वो अल्फा है, तो हम कहेंगे बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए के सामने जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है, तो हम कहेंगे ए अपॉन साइन बीटा, और आर के सामने एंगल जो है वो थीटा है, तो हम कहेंगे आर अपॉन साइन थीटा। अगर वी डोंट नो बीटा, तो हम थ्योरम की इन दो साइड्स का इस्तेमाल, इन दो टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू, 3 अपॉन साइन अल्फा हमें निकालना है, आर हमने निकाला है 7.54, एग्जैक्ट वैल्यू को रखते हैं ताकि आंसर सही है ऑलमोस्ट, और साइन 140, ठीक है जी। सो व्हाट वी विल डू, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग करेंगे साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 साइन 140 डिवाइडेड बाय 7.54, ठीक है, इसको सही करके लिख दूं, 3 डिवाइडेड बाय 7.54, ये आपके पास कर लेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका आप साइन इनवर्स ले लेंगे, तो आपको जो है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ अल्फा। जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? Sir, 14.89. 14.89, so we can call it approximately 15, ठीक है, and angles को we don't write it at decimal, so that's approximately 15, okay. So this is actually 15 degrees, okay. ठीक है, इसका मतलब है अगर ये 15 डिग्री है तो यकीनन ये 25 डिग्रीज होगा, क्योंकि आपके पास एक ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है ना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? एनीवन? साइन रूल सबको इस्तेमाल करना आता है? जी, साइन रूल सबको यूज करना आता है बच्चों? जी सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। Yes, sir. जी बच्चों, हो गया कॉपी?
जी सर। अच्छा. So now let's move on to the next concept. In this concept, we will be using the same vectors. The magnitude of the two vectors will be same, but this time we will put these vector to obtuse angle. Okay, वो एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो. ठीक है. दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक राइट पे हो और एक लेफ्ट पे हो, लेकिन लेफ्ट पे होने के साथ साथ उसके साथ कुछ एंगल भी हो. ठीक है. तो दैट इज एक्चुअली obtuse angle. Let's say the two vectors are acting on a box, 5 newtons and 3 newtons, and the angle between them is a angle greater than 180 degree, 90 degree, and that's 110 degrees. 110 डिग्री का एंगल हमारे पास है. That is actually known as obtuse angle. ठीक है. The theta is equals to 110 degrees. ठीक है. Greater than 90 degrees. इन दो वेक्टर्स का अब हम एडिशन करेंगे और उसके बाद वी विल फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट. ओके. अगेन हम एक को ए कह लेते हैं, एक को बी कह लेते हैं. ठीक है. थोड़ा सा दो चार चीजें क्लियर कर दूं. पहले मैं ए को ड्रॉ कर रहा हूं हेड टू टेल रूल से. ठीक है. अगेन आई एम यूजिंग हेड टू टेल रूल और हमें क्या मिलेगा एक्चुअली में. ठीक है. एक ट्राइंगल मिलेगा जब हम वेक्टर डायग्राम प्रॉपर बना लेंगे. दिस इज अवर ए. ओके. एंड दिस इज 5 न्यूटन्स हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट. बट लेट्स टॉक अबाउट बी. बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. अगेन दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बी वाला वेक्टर इस वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन से 180 डिग्री के ऊपर है. ठीक है. अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के यहां से एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पढ़ूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को रीड करते हुए दिस इज 110 डिग्री. सो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमारा ये वेक्टर कुछ यूं है एंड दैट इज 110 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये वही हॉरिजॉन्टल लाइन मैं दोबारा यहाँ बनाता हूँ. ठीक है. और इस दफा हमारा वेक्टर जो है बी वो इस लाइन से 110 डिग्री के ऊपर है, which means it will be pointing somewhere like this and this angle will be our 110 degrees. Okay, so this is our B and this is 3 newtons. Okay, now let's find out resultant vector. Resultant obviously can be found by joining the tail of the first. पहले की tail को दूसरे के head से जोड़ देंगे ऐसे एक सीधी लाइन से और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ होगी. अगेन दिस इज अ ट्राइंगल. ये दोबारा से एक ट्राइंगल बना है. ठीक है. एंड दिस टाइम दिस एंगल विल बी, ये एंगल कितना होगा बच्चों जी? व्हाट विल बी दिस एंगल? सेवेंटी 70 degree. ठीक है. गुड. This will be a 70 degree angle. We have a triangle with two sides and one angle. Again, we will use cosine rule. And cosine rule के अंदर हम फिर से वही लगाएंगे. R is equals to a square plus b square minus 2ab cosine theta. और theta obviously it is the internal angle of the triangle. Okay. So R will be equals to 5 square plus 3 square minus 2 times 5, 3 and cosine 70 degrees. Okay, and it's on all the root. R is equals to 34 minus 30 cosine 70. ठीक है जी. क्या आंसर आ रहा है इसका? 8.47. 8.47. No. Check again.
यही आ रहा है सर। यही आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? सर 4.87 आ रहा है। 4.87 आ रहा है, मैं यही तो हैरान हो रहा हूँ, एक पॉइंट कैसे आ सकता, आ ही नहीं सकता। देखो, मैं तुम्हारे दिमाग की थोड़ी सी घंटी बजाता हूँ। देखो मेरे पास जब ये दो वेक्टर 90 डिग्री पे रखे हुए थे, देखो एक थोड़ा सा इन सारे चीजों को एक साथ इकट्ठा देखने की कोशिश करते हैं। जब हमने दो वेक्टर्स को जीरो पे रखा, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिला कितना, 8 का। ठीक है, गौर से सुनना। फिर हमने उस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया और बढ़ा के कितना कर दिया हमने, 40 डिग्री, 0 से 40 पे गए, तो मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो गया, कितना हो गया, 8 से कम हो गया 7.5 हो गया। फिर हमने उस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया और बढ़ा के कितना कर दिया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कर दिया। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और कम हो गया, कितना हो गया, 5.83। अब हमने एंगल को 90 डिग्री से और ज्यादा बड़ा कर दिया है, तो क्या हमारे पास आंसर जो 5.83 था उससे छोटा आएगा या बड़ा आएगा? छोटा आएगा। छोटा आएगा। अब आप देखें क्या कैलकुलेशन बेटे एरर कर रहे हो आप? नहीं, वो आंसर से यार था, मैं बोल कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो क्या आंसर आ रहा है, 87। 4.87, ठीक है, न्यूटन्स, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने एंगल को बढ़ाया 180 किया, तो हमारे पास रिजल्टेंट और कम हो गया। हमने एंगल को बढ़ा के कितना कर दिया, 180 डिग्री, तो हमें रिजल्टेंट कितना मिला, 2 न्यूटन का। ठीक है, दिस इज नॉट मैक्सिमम, आई एम सॉरी, दिस इज मिनिमम। ओके, सो इस सारी चीजों को आप एक कंक्लूजन के तौर पे, मुझे एक स्टेटमेंट के तौर पे बता सकते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे, जब हमने दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल को बढ़ाया तो हुआ क्या? जी, एंगल ग्रेजुअली डिक्रीज हो, सॉरी, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे तो हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिला। फिर जैसे 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 हमने उन दोनों के दरमियान में एंगल को इंक्रीज करते गए, हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कम मिलता गया, और सबसे मिनिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कब मिला, जब हमारे पास 180 डिग्री का हमने एंगल रखा, है ना जी? यही हुआ भाई, जी। ठीक है। अच्छा, बस इसकी डायरेक्शन निकालते हैं और फिर ये सारी की सारी बातें कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पूरे की पूरी हुआ क्या। ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से हम इस आर की डायरेक्शन को निकालना चाह रहे हैं। लेट्स से दिस इज अ लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और इससे हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। Now let's call this angle बीटा दिस टाइम, इसको बीटा कह देते हैं। इस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं और इसको थीटा कह देते हैं। ठीक है, तो अब बी के सामने वाला एंगल बीटा है, दैट इज बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन 70, ठीक है, या थीटा जो भी है। और डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी हमें निकालना है कौन सा एंगल, बीटा। ठीक है, अगेन वी विल यूज दीज टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज 3 ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स टू 4.87 डिवाइडेड बाय साइन 70। तो हमें बीटा की वैल्यू मिलेगी साइन बीटा, और फिर हम इनवर्स ले लेंगे, sin beta is equals to 3 times sin 70 divided by 4.87, and then we will take a sine inverse of that. What's the angle? एंगल क्या आ रहा है बच्चों?
Sir, 35. 35. Good. Sir, 38.05 आ रहा है. 8.05. अच्छा, कोई और भी बताए भाई जरा. एक 35 कह रहा है, एक 38.5 कह रहा है. कोई और? 34.75. 34.75. ठीक है, 34.75 को वी कैन राउंड इट ऑफ टू 35. ठीक है. 38.05 बेटा आप जरा दोबारा से एक दफा कर लो सॉल्व, उसको चेक कर लो. जी जी बच्चों, 35 के अप्रोक्सीमेटली एंगल आ रहा है. जी सर, Yes, sir, 35. सही है. ठीक है. So the angle is approximately 35 degrees since it's 34.75 and we will round it off to without decimal place. So that's actually makes 35 degrees. Okay. So copy this down and then we will write down the conclusion कि अगर हमारे पास दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो तो their resultant magnitude is maximum. When we increase the angle between them, the resultant magnitude will keep on decreasing. ठीक है, resultant magnitude decrease होता जाएगा. जी बच्चों, हो गया कॉपी? कॉपी हो गया सबका? जी सर. ठीक है. Let's write down the conclusion of this whole. लिखिएगा. When the two vectors are in same direction, when the two vectors are in same direction, when the two vectors are in same direction,
their resultant magnitude is maximum. Their resultant vector magnitude, their resultant vector magnitude is maximum लिखिए यहाँ तक। जी लिखे हैं यहाँ तक। जी सर। लिखिएगा आगे। If the angle between the two vectors will increase, if the angle between the two vectors will increase, if the angle between the two vectors will increase, the magnitude of resultant vector will decrease. The magnitude of resultant vector will decrease. The minimum magnitude will obtain. The minimum magnitude will obtain. The minimum magnitude will obtain when the two vectors will point. When the two vectors will point when the two vectors will point in opposite direction. जी यहाँ तक हो गया। जी बच्चों हो गया यहाँ तक। Okay, now we will discuss about components of vectors. Okay. So let's discuss about components of vectors. अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास एक बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने ऐसे एक फोर्स अप्लाई की यूं 5 न्यूटन, तो ये फोर्स इसको किस तरफ लेके जाएगी? जी बच्चों, this 5 Newton force will take this block in which direction? सो रहे हैं आप लोग सारे?
जी सब सो रहे हैं क्या? सर राइट पे। राइट साइड पे। बाकी कहाँ है सारे? बाकी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं भाई? बाकी सब किधर हैं? बाकी सो रहे हैं क्या? अमन, दुर्दाना, हुरिया, मायरीन, शामिर, रायान। चलिए चलें फिर यहाँ पे क्लास को एंड कर देते हैं। जब बाकी सारे सो रहे हैं तो फिर ठीक है, सोते ही रहें। कौन सो रहे हैं?